Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today is the interactive edition of Market Mantra, so we'll be taking calls from you on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But the standard disclaimer, remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers on which you can call us on are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Ambarish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं हरवीर सिंह। हरवीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, शुक्रिया। हरवीर जी एडिटर इन चीफ हिंद किसान में हैं और आज हमारे साथ प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हेडलाइंस लेकर मौजूद हैं वी रवि कुमार। RBI Governor Shaktikant Das says Indian economy is returning to normalcy after the ease in lockdown. Key domestic indices rise for the fourth straight week ended yesterday. Sensex closes above the 36,500 mark. Nifty settles over the 10,750 level. And rupee logs 54 paise weekly depreciation against the US dollar. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि लॉकडाउन में ढिलाई के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति में वापस आ रही है। प्रमुख शेयर बाजारों में लगातार चौथे सप्ताह बढ़त दर्ज की गई। कल समाप्त हुए सप्ताह में सेंसेक्स 36,500 और निफ्टी 10,750 के स्तर पर चला गया और रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इस सप्ताह 54 पैसे कमजोर हुआ। Well, the first story is regarding the RBI governor. What he said, RBI Governor Shaktikant Das said that Indian economy is returning to normalcy after the ease in lockdown in the country. He was addressing the 7th SBI Banking and Economics Conclave today. He said that COVID-19 was the worst health and economic crisis in the last 100 years, with unprecedented negative consequences for output, jobs and well-being. But after the ease in lockdown, there are signs of improvement in the economy, he said. Mr. Das added that multi-pronged approach of the Apex Bank has provided a cushion from the immediate impact of the pandemic on the banks. He also cautioned that the medium-term outlook is uncertain and depends on the COVID-19 curve. We have the first caller who is joining us live with us from Kolkata. Rahul Kumar is online with us. Rahul, welcome to Market Mantra. Good evening to Market Mantra team. Yeah, please go ahead. What's your question, Rahul? My question is regarding when the Data Protection Act will be applicable in India. The Data Protection Act. Harveer ji, Data Protection Act, when will it be applicable in India? इसके ऊपर एक कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई थी, आई थिंक जस्टिस कृष्णा कमेटी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के अभी कोई बहुत उस तरीके का कानून तो नहीं है। जो आईटी एक्ट अलाउ करता है वही है अभी तो, लेकिन इसको लेकर के कॉम्प्रिहेंसिव कानून लाने का सरकार की तैयारी है। तो मेरे ख्याल से ये कानून की जरूरत भी है। जिस तरीके का डेटा थ्रेट और साइबर सिक्योरिटी के इश्यू सामने आ रहे हैं, तो सरकार उसके ऊपर काम कर रही है एंड टू एड्रेस दिस इश्यू।
और चेन्नई से हमारे श्रोता काशीनाथ जी लाइन पे मौजूद हैं। काशीनाथ जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार जी, मार्केट मंत्रा टीम को पूरा नमस्कार। ये जो कार्यक्रम है बहुत बढ़िया है जी। धन्यवाद। सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे आपका मार्केट मंत्रा में बदल के आज हरबीर गिरी आए हैं, कभी अशोक दास जी आते हैं, कभी जामिनी अग्रवाल जी आते हैं जी। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्यों हमेशा के लिए धीरेन जी आते हैं? क्या धीरेन जी इंडिया में एक ही म्यूचुअल फंड का एक्सपर्ट है, दूसरा कोई नहीं है? वो जब नहीं आते तो म्यूचुअल फंड कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। और नंबर 2 मेरा प्रश्न ये है कि आप बोलते हैं कोई स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक शेयर के बारे में आप नहीं बोलेंगे, लेकिन जो म्यूचुअल फंड का धीरेन जी बोल देते हैं स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक फंड के बारे में बोल देते हैं, ऐसा कि इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। धन्यवाद जी। म्यूचुअल फंड का तो काशीनाथ जी ऐसा है, म्यूचुअल फंड एक बास्केट ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करता, तो एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो अपने आप में एक जरिया है अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। तो इसलिए एज अ रूल हम उसमें उस प्रोग्राम में स्पेसिफिकली स्कीम्स का नाम बताते हैं, लिहाजा वो चलता आ रहा है इसलिए हम बता रहे हैं। बाकी स्पेसिफिक कंपनीज का बताना थोड़ा अनफेयर हो जाता है क्योंकि हम उन्हीं कंपनीज के रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं, तो उसको डिस्कस करना थोड़ा सा उचित नहीं लगता, हम इसलिए नहीं करते हैं। और जहाँ तक विशेषज्ञों के चयन का सवाल है तो वो कार्यक्रम के जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं और जो एडिटर्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन है, जिनको ठीक समझते हैं उसके हिसाब से और उपलब्धता के हिसाब से। और हमने अपने मनी मैटर्स प्रोग्राम में और भी म्यूचुअल फंड्स पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें धीरेन्द्र जी नहीं रहे हैं जी। तो अगर आप वो भी आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मनी मैटर्स में बहुत सारे प्रोग्राम म्यूचुअल फंड्स पे किए हैं, बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम्स किए हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब में। मनी मैटर्स न्यूज ऑन एयर के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिलेंगे वो जी। और मुंबई से हमारे चिरपरिचित श्रोता मुजाहिर खान जी लाइन पे हैं। अमरीश जी बहुत बहुत आपका स्वागत। रवि कुमार को जी स्वागत करता हूँ, बहुत दिन के बाद आए। हमारे सेक्रेटरी हरबीर जी तो हैं। हरबीर जी मैं एक सवाल अलग से पूछना चाहता हूँ जो आपके लिए एडिटर के तौर पे, अब आउटलुक के एडिटर हैं हिंदी के, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जैसे हमारे जो कोरोना के पेशेंट हैं 62 से भी ज्यादा हमारे रिकवर हो रहे हैं, तो अभी क्या जरूरत है कि साला वो वैक्सीन आए और वो दवाई उसकी क्या है? अगर वैसे हम जैसे खुद काढ़ा वाड़ा पी के अपने ख्याल भी रख लें और इस तरह ठीक भी होते रहे 90% तक पहुंच ही जाएंगे। ये इस तरीके से क्या झंझट होती है? हालांकि अपना कोरोना की वैक्सीन आ जाए तो अच्छी बात है, आपका क्या ख्याल है? और ये बैंकिंग सेक्टर कैसा रहेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक? देखिए कि कोरोना तो एक वैश्विक महामारी है और पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ रही है। इसमें कोई भी चांस नहीं लिया जा सकता क्योंकि कंटेंजियस है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो इसीलिए पूरी दुनिया की निगाह है कि अगर इसका वैक्सीन बन जाएगा और लोगों को वैक्सीन दे दिया जाएगा तो उससे ये होगा कि लोग सुरक्षित हो पाएंगे। नहीं तो तमाम सारी कोशिशें जारी हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए और कोशिशें हो रही हैं, इसलिए रिकवरी रेट इतना ज्यादा हो रहा है। और धीरे धीरे इसके चलते लोगों के बीच में जो डर है वो या चिंता है, वो पैनिक है, वो कम हो रहा है क्योंकि लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस बीमारी को हल्के में लिया जाए। इसलिए आप देखो पूरी दुनिया और हमारे देश में भी सरकारें किस तरीके से इसकी रोकथाम के लिए लगी हुई है। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसका तो मैं ये पक्ष आपको बताऊं। बैंकिंग सेक्टर को लेकर के एक तो बैंक्स के मर्जर भी चल रहे हैं और सरकार ने एक इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन की भी एक बात आ रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर के। काफी कुछ डिपेंड करेगा कि हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसकी स्पीड क्या रहती है और जो एनपीएज हैं वो ना बढ़े। ये अगर ठीक रहेगा तो फिर बैंकिंग सेक्टर के लिए स्थितियां अनुकूल हो सकती है। Srikanth from Mumbai is online with us. Srikanth, welcome to Market Mantra. Good evening, Market Mantra team. Good evening. I have a question. In order to give feedback and suggestions, may I know the email ID of Market Mantra, please? Yeah, sure. It's marketmantra.air@gmail.com. It's MAR. Marketmantra.air@gmail.com. That's right, yeah. Okay, thank you very much. You're welcome. और चलते हैं शेयर बाजारों का हाल जान लेते हैं। शेयर बाजारों में लगातार चौथे सप्ताह बढ़त दर्ज की गई है। कल समाप्त हुए सप्ताह में काफी उथल पुथल रही और भारतीय शेयर बाजार भी विदेशी शेयर बाजारों के साथ ही आगे बढ़े। कोविड-19 के बढ़ते मामलों का शेयर बाजारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं दिखाई दिया।
आर्थिक रिकवरी की संभावनाओं और कोरोना वायरस की औषधि जल्दी आने की उम्मीद के बीच निवेशकों ने उत्साह दिखाया और शेयरों में उछाल दर्ज किया गया। सप्ताह के दौरान बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.5% से अधिक बढ़कर 36,500 अंकों के पार चला गया। निफ्टी भी 10,750 के स्तर के ऊपर जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स 573 अंक यानी 1.59% की बढ़त के साथ 36,594 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी 161 अंक यानी 1.51% बढ़कर 10,768 अंकों पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में भी बंबई शेयर बाजार में उछाल दिखाई दिया। मिड कैप इंडेक्स 0.81% और स्मॉल कैप 1.59% बढ़ा। Keshav Jaiswal from Delhi is online with us. Keshav, welcome to Market Mantra. हाँ केशव जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जनाब, आप लोगों ने अभी एक व्यक्ति का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया कि आप स्पेसिफिक शेयर के बारे में नहीं बताते, वो तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या और जरूरत भी है कि ये आधे घंटे का प्रोग्राम न जाने कितने सालों से, जब से ये शुरू हुआ उससे मैं सुन रहा हूँ, लेकिन उसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं किया जाता, जबकि करोड़ों लोगों की ये ख्वाहिश है। तो आप इससे क्या कहना चाहेंगे? आप हमेशा ये कह देते हैं कि मैं प्रोड्यूसर को पहुंचा दूंगा, लेकिन प्रोड्यूसर लोग कभी कुछ करते ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है केशव जी। अभी हमने जिक्र किया जिसका कि अभी कुछ महीने पहले हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया था जो सिर्फ यूट्यूब पे था, अभी रेडियो पे नहीं आया। हो सकता है आने वाले वक्त में वो रेडियो पे भी आप सुन पाएं। वो प्रोग्राम था मनी मैटर्स, जो सिर्फ पर्सनल फाइनेंस पर आधारित था और 20 मिनट का प्रोग्राम था। वो रोज आता था, तो उसमें कॉल क्वेश्चंस भी लिए जाते थे। तो उम्मीद है वो रेडियो पे भी आ सकता है, आप सुनते रहें। पहले तो अभी आप अगर पुराने प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे अलग प्लेलिस्ट है मनी मैटर्स की, आप देख सकते हैं सारे पुराने प्रोग्राम्स। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। तो हमारी कोशिश है कि हम बढ़ाते रहें, उम्मीद करेंगे आगे जल्द और उसमें बढ़ोतरी हो। और मुंबई से हमारे श्रोता केशव लाइन पे मौजूद हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जिस तरह की ये जो भी मार्केट की सिचुएशन है, तो इस समय में मार्केट में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। और दूसरा जो है कि ये जो अभी की जो पेनी स्टॉक इतने नीचे आ चुके हैं, तो क्या आगे आने वाले समय में ये सब आउटडेटेड हो जाएंगे? थैंक यू। हेलो, हरवीर जी पूछ रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त इन्वेस्ट करना सही है? एक चीज देखिए कि मार्केट में लगातार हम लोग एक ऊपर की तरफ बढ़त देख रहे हैं और लिक्विडिटी काफी है। इसका सीधा मतलब है कि लोगों का इंटरेस्ट मार्केट में है और बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस हैं जो कि एक जो राइट प्राइस पर अवेलेबल है, इसलिए लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो है कि आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप मार्केट में अभी एंटर करना चाहते हैं और आपके लिए क्या अट्रैक्टिव वहां पर है। तो उसके लिए तो ये ठीक है, क्योंकि मार्केट में अगर पिछले कुछ आप लगातार ट्रेंड देखो तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये भी है कि थोड़ा आपको समझ के फैसला लेना होगा, क्योंकि इस तरह के भी ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनकी जो ग्राउंड पे रियलिटी है, मार्केट्स सिर्फ हमारा मार्केट नहीं, दुनिया भर के मार्केट उसको बहुत ज्यादा उसके साथ तालमेल में नहीं चल रहे हैं। तो ये इंडिविजुअली आपका डिसीजन हो सकता है कि किस तरह का डिसीजन आप लें। दूसरा सवाल मैं इनका ठीक से समझ नहीं पाया, कैन यू रिपीट? We couldn't hear it either, Harvi. So let's move on to the next caller, a regular caller from Mumbai. Ratnakar is online with us. Ratnakar, welcome to Market Mantra. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे दो छोटे सवाल है। एक है कि DHFL के बारे में पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ अभी न्यूज दी थी कि उनका बोगस अकाउंट था, ये था करके। तो उसके वजह से जिन्होंने अभी लोन लिया है और जो चालू है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? नहीं तो जिनका खत्म हो गया है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये एक सवाल है। और दूसरा है कि जो दिन ब दिन मार्केट बढ़ रहा है, तो उससे जो छोटे निवेशकों के लिए क्या सलाह दी जाए? देखिए, जो DHFL का नया मामला आया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ लोन का, जो एक फ्रॉडुलेंट अकाउंट का मसला है, वो उसके बारे में तो PNB ने खुद मार्केट को जानकारी दी है। और किसी ने लोन लिया है बैंक से या उसने चुका दिया है, उस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये बैंक की एक जो कंपनी, जो एज ए कंपनी जो PNB है, ये उसके बीच का मसला है। बाकी
जो दूसरे बोरोवर है या जिनका खत्म हो चुका है लोन का, उस पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका नहीं है। और छोटे इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा ये एक विचार रहता है कि उनको म्यूचुअल फंड रूट में जाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपका जो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से ठीक रहेगा वो डिसीजन लेने में ज्यादा सक्षम होते हैं किसी भी व्यक्ति के मुकाबले। तो वो रूट मेरे ख्याल से छोटे निवेशकों को अपनाना चाहिए। जी, और नोएडा से हमारे श्रोता हिमांशु लाइन पे हैं। हिमांशु जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल यह है कि जैसे स्टॉक मार्केट में एक बैंक निफ्टी है जिसमें 12 बैंकों के स्टॉक का एक वो निफ्टी का इंडेक्स होता है, उसमें सर उन 12 बैंकों के प्राइस ऊपर नीचे हो या ना हो, बट एनबीएफसी के प्राइस अगर ऊपर नीचे हो जाए तो वो एकदम से उसमें वॉलेटिलिटी आ जाती है, एकदम से वो ऊपर नीचे होने लगते हैं, उनके पॉइंट्स चेंज होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों है सर कि एनबीएफसी से वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बैंक निफ्टी, ये बताइए जरा। देखिए कि जो एनबीएफसी है वो काफी सारे अपने फंड्स बैंक से बोरो करते हैं, एक तरीके से रीफाइनेंसिंग की तरह से वहां से लेते हैं। अगर एनबीएफसी के असेट्स पे कोई इश्यू आता है, पॉलिसी उनसे रिलेटेड आती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका एक दोनों के बीच में को रिलेशन है, इसलिए उसका इम्पैक्ट बैंक पे पड़ने की एक संभावना रहती है और इसीलिए फिर वो जो इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं उनको वो अफेक्ट करता है। जी, Let's move on to our next story, which is the rupee story. रुपए का हाल जान लेते हैं। कल समाप्त हुए सप्ताह में रुपए में 54 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। $1 का मूल्य 75 रुपए 20 पैसे दर्ज किया गया। कोविड-19 को लेकर जारी चिंता के बीच इक्विटी बाजार के निवेशकों ने जोखिम वाली परिसंपत्तियों से दूरी बनाए रखी, जिसके चलते घरेलू मुद्रा में कमजोरी आई। दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती से भी रुपए पर दबाव बना। अन्य मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.9% बढ़कर 96.791 पर दर्ज किया गया। Let's look at the U.S. market as well. The U.S. stocks rose yesterday as a positive analysis on Gilead Sciences' antiviral drug to treat COVID-19 helped to soothe investor worries over a record rise in coronavirus cases in the United States. The Dow Jones surged 1.4%, the S&P 500 gained 1.1%, and the Nasdaq Composite advanced 0.7%. So, Harveer ji, how do you see the rupee, which is a very important thing because India is a major importer and especially of oil, and also the U.S. markets. The U.S. markets have been almost having a secular bull run for over a decade now, and it doesn't seem to stop. It keeps on making new highs. So how would you like to analyze both the dollar-rupee equation as well as the U.S. markets? Actually, if you see that Indian rupee relation with dollar depends on a lot of things, like our forex reserve, which is almost at the highest level right now, more than $500 billion. और इसके अलावा फिर हमारा जो इम्पोर्ट्स हैं, हमारे डॉलर की जो डिमांड है उसको लेकर के किस तरह का मार्केट में सामंजस्य है उसको ये, और इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर किस तरीके से बिहेव करता है, ये फैक्टर्स जो है वो उसको लेकर के रुपी का जो मूवमेंट है उसको तय करते हैं। एक तरह से देखिए कि हम लोग काफी टाइम के बाद हमारा करंट अकाउंट सरप्लस आया, इसका मतलब कि हमने ज्यादा पैसा फॉरेक्स कमाया। तो बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे अभी जो इकोनॉमी का ओपन अप हो रहा है और एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, तो हमारे ऑयल इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। तो ये उस पर डिपेंड करेगा फिर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कैसे मूव करती हैं, तो ये बड़ा एक फैक्टर रहता है। दूसरे यूएस मार्केट का सही कह रहे हैं आपके एक बुल रन डिस्पाइट, बट एट द सेम टाइम ये भी फैक्टर है कि वहां पर अभी जो कोविड का जो मसला है वो काफी तेजी से बढ़ भी रहा है यूएस में, उसके बावजूद भी वहां का मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। सो इसीलिए वहां पर आप देखिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंटिन्यू हैं और
कई जगह उसको लॉकडाउन की कोशिश की गई तो उसके लोग अगेंस्ट वहां पर ये भी आया है, तो ये एक पहलू भी चला। बट एट द सेम टाइम, जैसे कि मैं पहले भी जिक्र किया, जो IMF है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये जरूर कहा है साथ में कि मार्केट्स आर नॉट बिहेविंग विद मतलब उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन जो ग्लोबल इकोनॉमिक रियलिटी है उसके साथ नहीं है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। या तो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं बाकी उतना ड्राई है, और अब देखिए कि बुलियन प्राइसेस भी बहुत बढ़ी हैं इधर, तो ये लगता है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है दैट इज एनकरेजिंग मार्केट। क्योंकि बहुत सारा जो कोविड का पैकेज भी है, अगर उसमें देखो आप, US और बाकी जो यूरोपियन यूनियन है वहां पर लिक्विडिटी बहुत इन्फ्यूज की गई है। We have Shrikant Deshmukh from Thane online with us. Shrikant, welcome to Market Mantra. हेलो। Yeah, Shrikant, go ahead. What's your question? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि टीवी पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसका मीनिंग सिर्फ मुझे बताइए। SBI का 200 कॉल ऑप्शन लिया हुआ है एट द रेट ऑफ 10.60। सर, इसका मतलब क्या है? हरवीर जी, स्ट्राइक रेट 200। SBI जी strike rate of 200 call option की at 10.6. What does it mean is the question that Shrikant Deshmukh। नहीं, देखिए, कॉल ऑप्शन तो यही है कि जिस प्राइस के ऊपर उसका लिया गया है तो आपके पास विकल्प है उस प्राइसेस के ऊपर उसको खरीदने का, या जो भी उस वक्त जिसके पास भी ये इन्वेस्ट किया है उसमें। और स्ट्राइक ये प्राइस को आपने 200 जो है इसका हेलो, हाँ जी, बोलिए हरवीर जी, हाँ, तो ये एक उस तरीके से आपका प्राइस को 200 F&O ऑप्शन है, तो उसमें आपको जाना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या आप उसमें उसको जिसने भी लिया है उसको वो क्या यूज करना चाहता है। इट विल डिपेंड ऑन दैट। और थाने से हमारे श्रोता आदित्य लाइन पे है। आदित्य, नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर, मेरे 3 सवाल हैं। मतलब पहला सवाल मेरा ये है कि जो इन्वेस्टर्स है वो इकोनॉमिक रियलिटीज को नजरअंदाज करके इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, खासकर छोटी कंपनियों में, क्योंकि सेंसेक्स के बराबर किसी हफ्ते बढ़ते हैं और किसी हफ्ते सेंसेक्स को आउट परफॉर्म कर जाते हैं। तो इतना इन्वेस्टमेंट क्या स्मॉल कैप में सही रहेगा? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये जो लोग इन्वेस्टर्स बेट कर रहे हैं, वैक्सीन तो इतनी जल्दी आने वाली नहीं है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें शॉर्ट टर्म में हैवी डिक्लाइन जैसा मार्च में हुआ था? थैंक यू। I think he forgot his third question. Aditya has asked 2 questions, Harveer ji. One is about the investors. He wants to know, are they ignoring the ground realities? क्या वो ground realities को ignore कर रहे हैं? और दूसरा सवाल ये था कि क्या एक heavy decline expect कर सकते हैं, जैसे अब 26,000 तक गया था सेंसेक्स, क्या ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी नजर में? नहीं, देखिए कि एक तो ये मान लीजिए कि मार्केट में रिकवरी आई है और वो स्टडी है, कंटिन्यूअसली रिकवरी आई है। तो और ये जो मार्केट में जो क्रैश आया था उसके पीछे दुनिया में जो इतनी बड़ा जो एक पेंडेमिक है उसकी वजह से तमाम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हॉल्ट हो गई थी और इसीलिए सबकी चिंता थी। लेकिन अगर हम ये भी देखें, अब जो एक्सपेक्टेशन है और धीरे धीरे किसी भी सेक्टर में हो, वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या सेल्स हो प्रोडक्ट्स का, तो वो ग्रेजुअली सब में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो एवरीबडी होप के अगले क्वार्टर तक चीजें काफी हद तक नॉर्मलसी की तरफ चली जाएंगी और उसमें जो प्रेडिक्शन भी आए हैं ग्रोथ के, वो दुनिया की भी और हमारे देश की भी आगे के साल की ग्रोथ को लेकर के काफी पॉजिटिव है। तो एक तो ये इसलिए जो चिंताएं आई थी पहले उस तरह का तो नहीं है। जहां तक ये है कि मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसमें काफी लोग चिंतित हैं कि रियल एस्टेट में नहीं जाना चाहते हैं। गोल्ड बहुत महंगा हो गया कि उसमें अब रिटर्न उस तरह का मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और मार्केट में जो तेजी है उसके पीछे लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा रीजन रही है जो है। तो इसका मतलब लोगों ने इंटरेस्ट जताया कि यहाँ पर अगर हम एंटर करते हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को वो प्राइस बड़ी अट्रैक्टिव लगी हो स्टॉक्स की कि इस वक्त अगर हम एंटर करेंगे तो फ्यूचर में उनको इसके ऊपर अच्छा गेन हो सकता है। किशोर फ्रॉम भोपाल इज ऑनलाइन विद अस। किशोर, वेलकम टू मार्केट मंत्र। नमस्ते हरवीर जी, सत श्री अकाल। बताएंगे ये कोई एग्रीकल्चरल इंडेक्स है क्या, जैसे निफ्टी 50 है, मेटल इंडेक्स है, और क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर अगली बार भी अच्छा चलने वाला है, अगले साल भी बारिश अच्छी होने वाली है, तो क्या कोई
ऐसा इंडेक्स है जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या ऐसा कोई म्यूचुअल फंड हो जो बता पाए, या कोई भी ऐसा इंडेक्स एग्रीकल्चर ही चलने वाला, आपका क्या मानना है? और सर एक और पूछना था, स्पिरिट सेक्टर मतलब अल्कोहल सेक्टर कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए? थैंक यू। देखिए, कोई एग्रीकल्चर इंडेक्स जैसा मेरी नॉलेज में तो उस तरह से नहीं है स्टॉक मार्केट में कि एग्री इंडेक्स उस तरह से हो, लेकिन ये है कि जो कमोडिटी फ्यूचर्स हैं वहां पर जो स्टॉक ये जो एक्सचेंजेस हैं जो NCDX हो या दूसरे हैं उसमें जरूर एग्रीडेक्स की बात होती है। तो अदरवाइज स्टॉक मार्केट में तो उस तरीके का मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है जो है। और अल्कोहल सेक्टर के बारे में जानना चाह रहे थे। अल्कोहल सेक्टर ये बड़ा टिपिकल सा सवाल है आपका क्योंकि आप ये देखिए कि जो लिकर कंपनीज हैं उनके लिए मार्केट अभी तो बहुत बेहतर नहीं रहा। लॉकडाउन की वजह से काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे और ये एक ऐसे है कि इसमें हमारी सरकारें भी प्रोहिबिशन को भी कहीं हद तक उसके ऊपर भी उनकी एक स्ट्रेटजी रहती है। सो इट विल डिपेंड इंडिविजुअल कंपनी टू कंपनी के उनका मार्केट किस तरीके से ग्रो करते हैं या उनकी मार्केट स्ट्रेटजी क्या रहती है। और मुंबई से हमारे श्रोता रवि लाइन पे हैं। रवि नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो नमस्कार जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मुझे ये जानना था कि जैसे अभी ये जो शेयर मार्केट अभी चल रहा है तो ये आगे भी सेक्टर वाइज ही होगा रुझान की कोई सेक्टर चलेंगे या स्टॉक स्पेसिफिक ही होगा, वो एक जानना था। और गोल्ड का क्या रुझान रहेगा आगे फ्यूचर में? हरवीर जी। हाँ देखिए, ये आने वाले कुछ महीनों में तय होगा कि कौन सा सेक्टर बेहतर कर सकता है। जैसे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें थोड़ा थोड़ा डिमांड वापसी आने लगी है, लेकिन अभी कुछ बहुत सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो कई जो एवरग्रीन सेक्टर हैं जिसमें आपका फार्मा है और इसके अलावा जो एक पॉजिटिव बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज ग्रोइंग प्रॉपरली, वहाँ एक्टिविटीज भी सब लगभग नॉर्मल है। तो जो एग्री इनपुट कंपनीज हैं या उनके जो एग्रीकल्चर के लिए जो प्रोडक्ट मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट या उस तरीके का बनाती हैं उनके लिए चीजें काफी अभी तक सकारात्मक बनी हुई हैं। तो इट लुक्स लाइक दैट। ये दो तीन चीजें हैं। जहां तक बुलियन का है कि देखिए कई देशों में डिमांड निकली है बुलियन की काफी ज्यादा, तो जरूरी नहीं कि ये कंटिन्यू रहे क्योंकि अभी जो प्राइसेस है बहुत ऊपर चली गई है। और एक चीज और मानिए कि अभी हमारा देश दुनिया में सबसे बड़े इम्पोर्टर्स में रहा है, लेकिन अभी मार्केट उस तरीके से सामान्य नहीं हुए हैं जो डिमांड है। तो ये अभी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्राइसेस आगे जा पाएंगी, इसकी गुंजाइश काफी कम है। प्रॉब्ली लास्ट कॉलर मुश्ताक अली फ्रॉम कोलकाता। मुश्ताक जल्दी से पूछिए अपना सवाल। मैं बोलूं? हाँ जल्दी से पूछिए। Good evening, sir. How one is a small cap and how one is a mid cap, and how they can perform to move upward. हरवीर जी जल्दी से मिड कैप और स्मॉल कैप का क्या रुझान रहेगा आपकी नजर में? देखिए अगेन मेरा वही कहना है कि ये मोर और लेस स्टॉक टू स्टॉक पे अभी आप ध्यान दीजिए जो है। हालांकि गवर्नमेंट ने जो छोटे दर्जे की कंपनी है उनको काफी सारे राहत देने का भी फैसला किया है उनके लिए। तो अगर किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए कंपनी काम कर रही है तो उनके लिए अच्छा होगा। बट मेरा वही एडवाइस है कि आपको थोड़ा अपना रिसर्च को देख के और सेक्टर वाइज या बल्कि उसके बाद भी कंपनी वाइज आपको परफॉर्मेंस देख करके डिसीजन लेना चाहिए। जी, और चलते हैं अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हरवीर जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, Harveer, for joining us and answering these questions on our interactive edition of Market Mantra. Before we close the program, a reminder of the headlines. RBI Governor Shaktikant Das says Indian economy is returning to normalcy after the ease in lockdown. Key domestic indices rise for the fourth straight week ended yesterday. Sensex closes above the 36,500 mark. Nifty settles above the 10,750 level. And rupee logs a 54 paise weekly depreciation against the US dollar. Well, that's all we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra, Market Mantra.